Okay, students, today we are going to discuss about the cost of data warehouse. This is a pretty general thing that what actually amounts to the major portion of the cost of the data warehouse. If you go back into the history, then the major portion of the cost of any project was the hardware. The hardware was very costly and the software was much more cheaper. But with the advent of networking, we could expand our projects on the to the global platform. So what happened was that the cost of the software increased multifolds, and because of the research in the hardware technology, the cost for storing the data became very cheap. So what has happened in the recent days is that the software cost of a project like data warehousing and mining is almost 95% of the total cost. So that means 5% of the total cost is the hardware, whereas 95% of the total cost is software. Further, there are two ways using which you can actually implement the data warehouse concept for your own uh, company. One is you can use a public platform, you can create a private one, or you can create a hybrid of the two. Now, what is private? Private is basically a mechanism, or you can say a methodology by which the whole system, the hardware and the software, is maintained in campus. Whereas the public, we are using a public third party vendor for maintaining our data warehouse. The difference between the two lies in the security. The public is highly insecure because all of your data is actually available on a third party, you can say hardware. Whereas the private, your all data is actually available within your own premises. A hybrid can be a combination of both. Some of the features can be in-house and some of the features can be on the third party. The next thing is, how do you develop a data warehouse? There are two mechanisms again. Either you do the in-house building, or either you hire a third party that will implement the data warehouse for you. So let's have a look into, I have given you a brief about the cost. Software is more than 95% and 5% is only the hardware. You have two options, either go for private or either go for public. Public will be much cheaper as compared to private, but public is very less reliable and less secure as compared to private. So depending upon the cost, the budget that you have, you can take a decision on which option you want to go for. So as you can see that the cost is classified as short-term and long-term cost. I repeat, the cost is classified as short-term and long-term. And the total cost actually depends upon the developers and the designers of the data warehouse. It does not depend upon how much of hardware that we need. No, the better design of the software you make, the better development takes place, the lower will be the cost. So you can look at the figure that is given below. So what happens here is that, as you can see in this figure given here, with the passage of time, the cost of the storage has declined to a very bare minimum. Initially, the storage was very costly. When I bought my first computer, I remember the total memory in the system was about 2 GB. Forget about the RAM, the storage, that is the hard disk, was of 2 GB and it was very costly. And now the system that I have has a memory of 1 terabyte. Storage की बात कर रहा हूं मैं, is of 1 terabyte. 1 terabyte की storage है.
तो आप मान लीजिए द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 1/10 of the 2 GB that I had in back in 2000. So the cost has really gone down. That is why we are able to store more and more data. And we are willing to do that because we want to make proper analysis from that data. So let's go further. There are several other dynamics of information that affects the long-term cost of the storage. Even though the cost of storage is dipping, the need for the storage space to meet the demand for data is also growing. Now, there is some kind of balancing also. If the cost has gone down, the amount of storage that we do has gone up multifold. But there is no need to worry. Even though our requirement of to store the data has gone up, the decline in the hardware cost is so much that we need not worry about that. So what we need to worry about is from where and which vendor the software will be hired. How good will be the design? So the cost basically depends upon the software and not the hardware. Please note it down. This thing that you should be always aware of कि हमें cost of data warehouse जो है उसका biggest factor उसका software. There is another important thing that you need to keep in mind is this figure that you have on the screen. Now, what happens is if you are aware of one term that is known as archive. I hope you have heard of this term that is called archive. Now, any one of you have heard of this term archive? Yes, any one of you have heard of this term archive? Okay, so I'll just answer that. So whatever data that we have, what happens is that after a specified period of time, that data becomes less relevant or less assessed. So what we do is we take that data out from the active, you can say database and store it as a summary or something in the archive. So we do not keep the whole data as such, but we make a archive of that. Means उसका मेटा डेटा सेव करके रख लेते हैं. तो ऐसे करते करते हमारे पास archive में historical data बहुत ज़्यादा प्लेस हो जाता है. So with the help of certain software components like data warehouse appliances, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट को और कम कर देता है. अगर हम लोग डेटा वेयरहाउस अप्लायंस कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं तो यू कैन सी that the cost of the storage increases with the passage of time, whereas if we use the appliance we are able to reduce the cost somewhat. वो कैसे reduce हो जाती है? बिकॉज हम लोग डेटा को अर्काइव करते हैं और उसको उसकी समरी या अलग फॉर्मेट में सेव करते हैं जिससे टोटल रिक्वायरमेंट जो डेटा की है वो स्टोरेज की है वो कम हो. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ is called data pre-processing. So before starting the topic, आप में से किसी ने सुना है what is data pre-processing? Yes, any one of you who knows or has heard of what is data pre-processing? Yes, anyone? What is data pre-processing? Okay. So data pre-processing क्या होती है? So what is data pre-processing? Data pre-processing का मतलब ये है कि जब हम लोग डेटा को ट्रांसैक्शनल में ऑपरेशनल्स में फीड करते हैं तो there are many times that we make a lot of mistakes in that data. Sometimes we miss a few data. And moreover,
हम लोग उसका एग्रीगेशन नहीं करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एक मंथ में प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हम लोग वो स्टोर करते हैं, लेकिन वो एक मंथ में कितनी बार प्रेजेंट था, कितनी बार एब्सेंट था, ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं रखते। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर you can say entering the data into the operational database, जब operational database में data को enter किया जाता है तो ज्यादा ध्यान उसकी एंट्री की तरफ होता है। तो जब हम लोग एंट्री करते रहते हैं तो देन देयर आर बाउंड टू बी सम मिस्टेक्स, और समटाइम्स इवन वी मिस अ फ्यू एंट्रीज। तो इन सब चीजों को, इन सब इनकंसिस्टेंसीज को ओवरकम करने के लिए हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। नाउ व्हाई वी डू प्री प्रोसेसिंग? हम लोग प्री प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं सो दैट जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर एनालिसिस। अगर आपका डेटा इनकरेक्ट है, डेटा इनकम्प्लीट है, तो देन नेचुरली द एनालिसिस विल आल्सो बी पुअर, बहुत ही पुअर एनालिसिस। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि आपका डेटा इनकम्प्लीट है? जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज सो मच ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड। कुछ डेटा तो ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो एंट्री करते हैं, वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बैठाए होते हैं, वो फटाफट एंट्री करते हैं। एंड व्हेन दे डू दैट एंट्री दे आर बाउंड टू मेक दोस मिस्टेक्स। तो हमें इन चीजों को क्लीन करना है सो दैट आवर डेटा इज ready for the analysis, and this process is called data pre-processing. तो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं क्यों? क्योंकि द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स सिस्टम्स इज नॉट इंटेग्रेटेड, ये हमारा सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है उसके अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज होती हैं और बहुत सारे एरर्स भी होते हैं। देख सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के 102 मार्क्स, विच इज नॉट पॉसिबल। द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन हैव, एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 100, लेकिन एंट्री करते समय उस पे 102 कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, हम लोग उनकी मैनुअल एंट्री कर रहे हैं, तो एक जगह पर आकर एक स्टूडेंट ने पीजीडीसीए में एडमिशन लिया और गलती से उसकी एज 7 लिख ली गई। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ पीजीडीसीए स्टूडेंट हैज एन एज ऑफ 7। तो ये कहाँ से आया? एंट्री मिस्टेक। फिर कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं। मिसिंग वैल्यूज मतलब आप उसकी वैल्यू को लिखना ही भूल गए। यहाँ पर तो एज 7 लिखा है ना, कहीं जगह पर आपके पास टाइम कम होता है या आप गलती से भूल जाते हैं, यू डू नॉट हैव द वैल्यू फॉर द एज, सो दैट इज कॉल्ड 7। तो व्हाट हैपेंस इज हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। प्री प्रोसेस करना क्यों पड़ता है? ताकि हम लोग ऐसी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकें। डेटा प्री प्रोसेसिंग होती कब है? प्लीज नोट डाउन, व्हेन वी परफॉर्म डेटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा ऑपरेशनल सोर्सेज से एंटर किया जाता है, फिर उसको डेटा वेयर हाउस में फीड किया जाता है। तो डेटा वेयर हाउस में फीड करने से पहले हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, सो दैट हमारा डेटा जो डेटा वेयर हाउस के अंदर है वो एनालिसिस के लिए रेडी है। कुछ एक चीजें हैं जो हम लोग नोट करेंगे, आप समझेंगे, सो दैट दे आर हेल्पफुल टू यू इन व्हाइल वी डू द डेटा प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द डेटा समराइजेशन। डेटा समराइजेशन एक्चुअली क्या है कि हम लोग डेटा की कुछ ना कुछ समरी बनाते हैं और वो समरी हमें हेल्पफुल होती है डेटा को प्री प्रोसेस करने में। इसके कुछ मैयर्स हैं। सबसे पहला मैयर है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आप सबने ये मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सुना हुआ है। हमारे पास 3 तरह की मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। व्हाट इज द मीन? मीन होता है एवरेज ऑफ ऑल द रिकॉर्ड दैट वी हैव।
जैसे मार्क्स 200 स्टूडेंट के इंडिविजुअल मार्क्स होंगे, हम लोग उसकी एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारा मीन बन जाए। हम लोग मीन कई बार क्यों लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखते समय आप भूल गए, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्क्स? आई डोंट नो। उस बच्चे के कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन उसके मार्क्स ना रिकॉर्ड करने से डाटा गलत हो सकता है। तो व्हाट शुड बी द गेस आई शुड मेक? मैं सोचता हूं कि उसके मीन मार्क्स लिख लेते हैं। उससे क्या होगा कि ना तो रिजल्ट आगे जाएगा ना तो पीछे आएगा, हम लोग उसकी एवरेज ले लेते हैं। सेकंड इज मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द n/2 और द मिडल एलिमेंट। मीन क्या है? एवरेज। मीडियन क्या है? अगर आपके पास मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स 12 हैं, सबसे ज्यादा 90 हैं, तो उस स्टूडेंट के मार्क्स को मीडियन गिना जाता है जो बिल्कुल मिडल में है। ठीक है। नेक्स्ट इज मोड। मोड रेफर्स टू द मार्क्स और द वैल्यू विच इज अचीव्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 65 मार्क्स आए हैं तो हमारे लिए मोड जो है वो 65। दिस इज मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर हमें हेल्प करता है डेटा को प्री प्रोसेस करने में। जैसा मैंने आपको बताया, मिसिंग वैल्यू, नॉइसी वैल्यू, हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में से उठा लेते हैं वैल्यू। नेक्स्ट इज मैयर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन किसे बोलते हैं? डिस्पर्शन इज ऑल्सो नोन एज वेरिएंस। कितना वेरिएंस है मार्क्स में? समझ रहे हैं? सबसे कम मार्क्स कितने हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो एक इसको वेरिएंस बोलते हैं कि आपके मार्क्स में वेरिएंस कितनी ज्यादा है। तो हम लोग उसको भी स्टडी करते हैं बिफोर वी कैन start with the pre-processing. Okay, so what is variance? It is the range of the data set, is the difference between the largest and the smallest value. रेंज क्या होती है? रेंज होती है कि आपके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। परसेंटाइल बना सकते हैं। जैसे मीडियन जो होता है वो मिडल में होता है। मिडल का मतलब क्या होता है? अगर आपके 100 परसेंटाइल हैं तो 50th इज द मिडल, तो हम लोग 50th परसेंटाइल को मीडियन बोलते हैं। उसी तरह से हमारा क्वार्टाइल 1 होता है। क्वार्टाइल 1 मतलब 4 क्वार्टाइल बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सी पोजीशन पर होगा? 25th परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल 2 क्या होगा? क्वार्टाइल 2 क्या होगा? क्वार्टाइल 2 होगा आपका मीडियन विच इज रिप्रेजेंटिंग द 50th परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 75। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन दीज थिंग्स टू मेजर द डिस्पर्शन। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। डिस्पर्शन रेफर्स टू द वेरिएंस विद इन द data. Now, we are not going to extend the lecture too much, so we are only going to study a few methods of the data pre-processing. Data pre-processing से जुड़े कुछ methods को study करेंगे। Our first method is called data cleaning. Please note down, our first method is data cleaning. What is data cleaning? कई बार जब हम लोग सोर्स में से डेटा को उठाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसैक्शनल में से, तो उसमें कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। मिसिंग एट्रीब्यूट्स मतलब उनकी वैल्यू को स्टोर ही नहीं किया गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। सेकंड इज नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा जैसे मैंने आपको बताया, किसी स्टूडेंट की एज 7 लिख लेना, मतलब रिकॉर्ड तो किया है लेकिन वो वैल्यू गलत है। द थर्ड इज इनकंसिस्टेंट डेटा। इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है? जैसे कोड ही गलत ले लेना, हम जो कोड लगा रहे हैं उसमें गलत कोड को लगा लेना, दैट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट डेटा। ठीक है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर दीज मिस्टेक्स।
and some of the reasons that have been mentioned below. So these are why we need to perform data cleaning. Please note down these reasons. The first is the problem with the data collection instrument. अगर आपने बाहर एक सेंसर लगाया है और सेंसर डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो अगर सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो डेटा गलत हो जाएगा. तो द डेटा जो है उसमें गलती होगी. द सेकंड इज डेटा एंट्री, मतलब लोग मैन्युअली डेटा को एंटर कर रहे हैं तो थक जाते हैं, कई बार गलती हो जाती है, तो दैट इज द सेकंड रीजन. द थर्ड इज एरर इन डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? नेटवर्क में जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा भेज रहे हैं, तो जब हम डाटा को भेजते हैं तो उस समय ट्रांसमिशन में कोई एरर्स आ जाते हैं. द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस. जैसे हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा, लेकिन बफर साइज इतना कम था कि हमने जितना डेटा भेजा वो उतना स्टोर नहीं कर पाया, एंड सम ऑफ द डेटा वाज लॉस्ट. So these are some of the reasons why हमारे डेटा के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं. 4 important reasons have been discussed. तो अगर इन चारों में से किसी भी रीजन के कारण आपका डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है या नॉइजी है या इनकम्प्लीट है, हमें डेटा को क्लीन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मेथड. सो वी आर ओनली गोइंग टू डू 2 मेथड्स टुडे. आज हम लोग सिर्फ 2 मेथड्स करेंगे. फर्स्ट मेथड इज कि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. ये आप नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं. आई रिक्वेस्ट आप इन नोट्स को एक बार जरूर देखें. तो सबसे पहला है इग्नोर द टपल. अगर आपके पास 2 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, यानी 2 करोड़ एंट्रीज हैं, उसमें से लेट अस सपोज 5000 एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं, तो एनालिसिस के लिए यूज करना है. 2 करोड़ में से अगर 5000 एंट्रीज हम रिमूव भी कर देते हैं तो हमारे एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ने वाला. तो सबसे पहला और सबसे इजी मेथड ये है कि आप उन एंट्रीज को इग्नोर कर दीजिए जो मिसिंग. सेकंड इज फिल द मिसिंग वैल्यूज मैन्युअली. ये इतना अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप मैन्युअली उनको ऐड कर दीजिए विदाउट एनी लॉजिक. दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. द थर्ड वन इज यूज अ ग्लोबल कांस्टेंट टू फिल द मिसिंग वैल्यू. अगर एक ग्लोबल पैरामीटर है, एक ग्लोबल वैल्यू है, लेकिन आपने कहीं से एंट्री उठाई है, वो एंट्री मिसिंग है, तो आप उस ग्लोबल कांस्टेंट वैल्यू को यूज कर सकते हैं उसको फिल करने के लिए. द फोर्थ वन इज एट्रीब्यूट मीन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. जैसे किसी के एज मिसिंग है, किसी का एज मिसिंग है, तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द अदर स्टूडेंट्स. अगर एवरेज एज ऑफ द अदर स्टूडेंट इज 20, तो इट इज बेस्ट टू फिल द एज ऑफ दिस स्टूडेंट जिसकी वैल्यू मिसिंग है बाय 20. ठीक है. तो लास्ट वन इज यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टू फिल द मिसिंग वैल्यू. जैसे स्टूडेंट का हमने स्टेटस नोट करना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, मिसिंग है, तो हम मानते हैं कि 99 से भी ज्यादा % ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनमैरिड, तो हम लोग उसकी वैल्यू को अनमैरिड ही उठा लें. इसके कुछ मेथड्स भी हैं जैसे बेसियन फॉर्मूला या मैनी अदर फॉर्मूला, डिसीजन ट्री इंडक्शन, हम लोग इनको यूज करके उस वैल्यू को फिल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है तो उसकी अटेंडेंस कितनी होगी. हम मानते हैं कि अगर वो फेल हुआ है तो उसकी अटेंडेंस भी कम ही होगी. तो उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं. तो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए आप टप्पल को इग्नोर कर सकते हैं, वैल्यू को मैन्युअली फिल कर सकते हैं, आप कोई ग्लोबल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, आप मीन, मीडियन या मोड यूज कर सकते हैं,
या आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हैंडलिंग द नॉइजी डाटा। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने किया है दैट द वैल्यू इज ऑल टुगेदर, पूरी की पूरी वैल्यू ही मिसिंग है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि वैल्यू में नॉइस है, मतलब एरर है। तो उस एरर को, जैसा मैंने बताया कि एक स्टूडेंट की एज 7 ईयर्स, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर एक स्टूडेंट की एज 19 है लेकिन गलती से 20 डाल दी है तो आपको ये एरर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन किसी ने स्टूडेंट की एज 7 डाल दी तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो आपके बाउंड से बाहर हो गई। जब हम लोग ऐसी वैल्यूज को पकड़ते हैं तो उन वैल्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 या 4 मेथड्स हैं। अब हम लोग वो मेथड्स को चेक करते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बिनिंग मेथड। तो बिनिंग मेथड या बकेट्स या बिन्स क्या होती हैं कि हम लोग सॉर्टिंग कर देते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं ना, स्टूडेंट की सॉर्टिंग कर देते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। तो मान लीजिए उसमें उसकी एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो बिनिंग मेथड क्या कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप उसके ऊपर वाली एंट्री और उसके नीचे वाली एंट्री को देखिए, और जो वैल्यू मिसिंग है उन्हीं दो वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द बिनिंग मेथड? बिनिंग इज बेस्ड अपॉन क्रिएटिंग सम बिन्स और द बकेट्स। सॉर्टिंग की जाती है और सॉर्टिंग करके एलिमेंट को रखा जाता है। जब कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वैल्यू उसके ऊपर वाले और नीचे वाले रिकॉर्ड के बीच में हो। तो लेट्स लुक एट दिस बिनिंग मेथड। द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सॉर्टेड मैनर, यानी हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। Then the binning method is used to smoothen the sorted values by consulting the values around it. यानी हम लोग किन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे जो उसके आसपास हैं, या उससे पहले हैं या उसके बाद में है। तो उन वैल्यूज को यूज करके हमें पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू जो इनकरेक्ट आ रही है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। द नेक्स्ट मेथड इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में सॉर्टिंग नहीं होती है, हम लोग डेटा को पॉइंट्स में लगाते हैं। जैसे एक आपके पास एक ग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लस्टरिंग में आपको वैसे बता देता हूँ। जब हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स को, तो जब हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं तो आप ध्यान देंगे कि कुछ पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के काफी सिमिलर हैं, और कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा उनसे दूर हैं लेकिन वो आपस में बहुत सिमिलर है। तो थोड़े 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 से जो हैं वो क्लस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ। आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन। अगर आप इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर आप इन डेटा पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप इन डेटा पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो ये काफी सिमिलर या काफी पास हैं एक दूसरे के। अगर आप इन डेटा पॉइंट्स को देखेंगे, ये वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग ये जो ऊपर वाले डेटा पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे के काफी पास। फिर आप इन डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो ये डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के काफी पास। तो टोटल पॉइंट्स जो हमने लगाए हैं, इनमें से सारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, फिर कुछ पॉइंट्स कहीं दूर पड़े हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी क्लस्टर के पास नहीं। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जो किसी के भी पास नहीं है, हम लोग इनको क्या बोलते हैं? दीज पॉइंट्स जो किसी के भी पास नहीं है, इनको बोलते हैं आउटलायर्स।
आउटलायर्स आर द एरर्स, कोई ना कोई गलती हुई होगी, दैट इज वाई दीज पॉइंट्स जो हैं वो बहुत दूर हैं बाकी पॉइंट्स से। तो ये सारे पॉइंट्स इतनी दूर हैं बाकी पॉइंट से, तो इनको हमें पता चल गया कि दीज आर द आउटलायर्स, यानी ये गलत है। तो इनको सही कैसे करना है, इनके जो बाकी पॉइंट्स हैं उनकी सिमिलैरिटी निकालेंगे क्लस्टर के साथ, एंड दे शुड देन बी मूव्ड इन बिटवीन एनी वन ऑफ दीज क्लस्टर। ठीक है, तो हमें इन चीजों से पता चलता है कि ये एक्चुअली कहां पर बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज देखी, हमने देखा बिनिंग। बिनिंग में क्या होता है, हम लोग सॉर्टिंग कर देते हैं। तो सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग उसका ऊपर या नीचे वाला एलिमेंट देखें। क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम लोग क्लस्टर्स बना देते हैं, फिर उन क्लस्टर्स के बेसिस पर सिमिलर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पर जो है मिसिंग वैल्यू को हम लोग फिल करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। क्लस्टरिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द आउटलायर्स। हमने देखा ना आउटलायर्स क्या होते हैं, वो वाले पॉइंट्स जो किसी भी क्लस्टर में नहीं आते हैं। देन द सिमिलर वैल्यूज जो होती हैं दे फॉर्म द क्लस्टर्स, एंड आउटलायर्स डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द क्लस्टर्स। या तो हम लोग उन आउटलायर्स को इग्नोर कर सकते हैं, या हम लोग समझ सकते हैं कि उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मिस्टेक क्या होगी, जब हम लोग उसको रीफिल करते हैं तो वो किसी ना किसी क्लस्टर को ज्वाइन करते हैं। द लास्ट वन इज रिग्रेशन। व्हाट इज अ रिग्रेशन? रिग्रेशन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें एक लाइन बना देते हैं, तो बेसिकली ऑल द पॉइंट्स जो है वो उसको फिट करते हैं। तो द रिग्रेशन इज टू get the data points to a function, and linear regression is used to find the best line to fit the two variables so that one variable can be used to predict the value of another variable. अगर एक की वैल्यू मिसिंग है, अगर हमने रिग्रेशन लाइन बना ली है, तो हम लोग दूसरे की वैल्यू को पकड़ सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। Now this is a regression line. Now this is a regression line. Why we use the regression? I hope you are able to see this screen. Regression line is a mathematical function. ठीक है, कुछ पॉइंट्स कुछ दूरी पर हैं, हमने ये रिग्रेशन लाइन लगा ली है। रिग्रेशन लाइन यूज क्यों करते हैं? एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से प्रेडिक्ट करना। फॉर एग्जांपल, आपका खर्चा कितना है, हाउ मच यू स्पेंड, ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। अब हमने एक मैथमेटिकल लाइन लगा दी है जिससे हमें पता चल जाता है कि दिस इज हाउ इट हैपन। जिसकी जितनी इनकम बढ़ती है उसका उतना खर्चा बढ़ता है, और कितना बढ़ता है वो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मान लीजिए आपके डेटा के अंदर ऐसा हो गया कि किसी का एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा गलती से रिकॉर्ड हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा उसका एक्सपेंडिचर कितना है? वो इस लाइन से पता चलेगा। इस लाइन में आप देखेंगे कि उसकी इनकम कितनी है। अगर उसका एक्सपेंडिचर आपने गलत नोट कर लिया है, तो आप इस लाइन की मदद से उस एक्सपेंडिचर को दोबारा से निकाल सकते। सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप थ्योरेटिकल है, आपको हर एक चीज ध्यान से समझाइए। इफ इट इज क्लियर, देन if you have any questions you can ask me, or you can simply type no questions in the chat window. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, you can simply type no questions in the chat window. So I am waiting for your response. Okay, so these notes are available. Please go through those notes very carefully. अगर आपको मेरी help की ज़रूरत पड़ेगी तो I will be available. Okay, thank you for the lecture, and this is the end of the lecture today.